अब स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, सेफ्टी मेजर्स फॉर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। कि अपन कैसे उसको मतलब उसको ढंग से कैरी करेंगे बिल्डिंग मटेरियल को, और कैसे अपन उसको ढंग से स्टोर करेंगे, वो सब कुछ उसके सेफ्टी मेजर्स अपन को ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेफ्टी मेजर्स सब सारे सेफ्टी मेजर्स पढ़ेंगे। पहला है स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। हैंडलिंग एंड गुड मॉर्निंग स्टोरिंग सर। Good morning. Handling and storing building material involves diverse operations such as hosting tons of steel with a crane, driving a truck loaded with concrete blocks, carrying bags or materials manually, and stacking palletized bricks or other materials such as drums, barrels, and dumpster. The efficient handling and storing of material are vital to industry. In addition of raw material, these operations provide a continuous flow of parts and assemblies through the workplace and ensure that materials are available when needed. Unfortunately, the improper handling and storing of material often result in costly injuries. आगे समझ में, अगर अपन उसको ढंग से कैरी और स्टोर नहीं करेंगे तो ज्यादा मतलब इंजरी खतरनाक हो सकती है। और इंजरी खतरनाक का मतलब वहां पर अगर मनी का लॉस होगा, प्लस अपने जो भी मनी का लॉस होगा, और प्लस टाइम और उसके जो भी वर्कर के इंजरी होगी उसके लिए ऑन फ्यूचर परमानेंट डिसेबिलिटी आ सकती है। तो इसलिए उसको ढंग से कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन एडिशन टू ट्रेनिंग एंड education applying general safety principle such as proper works practices, equipment and control can help reduce workplace accident involving the moving, handling and storing of material, whether moving material manually or mechanically. Employees should know and understand the potential hazard associated with that टास्क। उनको पता होना चाहिए, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि बिल्डिंग मटेरियल कैरी करने में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और क्या 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 अपन को सेफ्टी मेजर्स ध्यान रखने हैं। अगर नहीं रखे तो एक्सीडेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या अपने को नुकसान हो सकता है, वो सब कुछ उनको वर्कर्स को ध्यान रखने की जरूरत है। एट एट हैंड at heart and how to control their workplace to minimize the danger, because numerous injuries can result from improperly handling and storing material. Workers should also be aware of accidents that may result from unsafe and improper handling of equipment, as well as from improper waste पार्टिकल्स। इन सब से अपने पास क्या क्या इंजरीज होने के चांसेस है, वो सब कुछ अपन को दिमाग में रखने की जरूरत है। इन एडिशन वर्कर शुड बी एबल टू reorganize the method for eliminating or at least minimizing the occurrence of such accidents। अगर उसको नॉलेज रहेगी, अगर वो सेफ्टी मेजर्स ध्यान रखेगा तो या तो उसको एलिमिनेट कर देगा या तो फिर मिनिमाइज कर देगा एक्सीडेंट होने के चांसेस को। एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज शुड एग्जामिन देयर वर्क प्लेस टू डिटेक्ट एनी अनसेफ एंड अनहेल्थी कंडीशन, practices or equipment and their correct action। फिर है वर्कर्स फ्रीक्वेंटली cite the weight and bulkiness of the objects that they lift as a major contributing factors to their injuries. Other hazards include falling objects, improperly stacked material, and various type of equipments. Employee must be made aware of potential injuries that can occur when manual moving materials involving the including the following: strain and strain and strain from lifting loads improperly or from carrying load that either too large or too heavy। मतलब उनको ढंग से कैसे उठाना है, जो टू मतलब बहुत ज्यादा बड़े हो या बहुत ज्यादा हैवी हो, उनको ढंग से कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रैक्चर्स एंड fractures causes by being struck by material or by being caught in the pinch point।
cut and bruises caused by falling materials that have been improperly stored or incorrectly cutting or other securing devices. फिर है when moving materials manually workers should attach handle or holder to loads. In addition, workers should always wear appropriate personal protective equipment. हमेशा उसको सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो अपन ने सारे पढ़े थे, हेड के, आईज के, फुट के, चेस्ट के, सारे कुछ अपन को बॉडी के जो भी इक्विपमेंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो सब कुछ अपन को पहन के जाना जरूरी है, जब जाके उसको इंजरी के चांसेस कम रहेंगे. To prevent injuries from other oversized loads, workers should seek help in the following. First, when a load is so bulky that employees cannot properly grasp or lift it. Second, when employees cannot see around or overload. Third, when employees cannot safely handle a load. ये अपन को 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं. और बाकी अपने पास अपन ने पहले पढ़ा है भाई, ये हेड प्रोटेक्शन रखना है, आई प्रोटेक्शन रखना है, स्टील टो सेफ्टी शूज रखने हैं, मेटल फाइबर प्लास्टिक फाइबर गार्ड रखने हैं. तो ये सारे चीजें अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी, जब जाके इंजरी के चांसेस कम होंगे. फिर नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर. क्या हुआ? नया टॉपिक लिया क्या आपने? नया कौन सा? सेफ्टी मेजर्स पढ़ा रहा हूं मैं. पहला था बिल्डिंग मटेरियल का और अब दूसरा एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल. बिल्डिंग मटेरियल का पता चल गया अपन को, बिल्डिंग मटेरियल को स्टोर और कैरी ढंग से करना है. अब देखो इसका बिल्डिंग मटेरियल के बारे में अगर नहीं समझ में आया तो वापस समझा रहा हूँ. अगर बिल्डिंग मटेरियल एक तरह से बता रहा हूँ, चवाली तुम लोगों ने सुना होगा कि पत्थर पहले, आजकल तो क्रेन उठाती है, पहले चवाली उठाते थे. अगर 4 जिने वो उठा रहे हैं और उसको ढंग से कैरी करके अगर नहीं जा रहे और एक जिना भी उसका वजन को यहाँ वहां करता है तो उन चारों को इंजर्ड होने के चांसेस है, ये ध्यान रखना. तो उनको जो छीन होती है उसको कैरी करके ऊपर तक पहुंचाना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता था. तो उसको ढंग से कैरी करके ऊपर तक मतलब सेफली पहुंचाना या सेफली किसी भी मटेरियल को स्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. वहां पर इंजरी बचाने के लिए एक तो सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस उनको पता होने चाहिए कि सेफ्टी मेजर्स क्या क्या रखने हैं, और सेफ्टी अपने पास गार्ड कौन कौन से रखते हैं, जैसे आई प्रोटेक्शन और ये सब कुछ मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूँ. हेड प्रोटेक्शन, फुट प्रोटेक्शन, ये सारे कुछ मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाए हुए सारे इक्विपमेंट्स. ठीक है ना. अब दूसरा है सेफ्टी मेजर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ बिल्डिंग. अब बिल्डिंग के एलिमेंट्स क्या क्या होता है ये बता सकते हो मुझे? जल्दी. जल्दी बताओ. फास्ट फास्ट फास्ट. अब देखना सुनना. सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल वर्क, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, एक्सकेवेशन. अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के अंदर वाटर पाइपलाइन, सीवर लाइन, इलेक्ट्रिक केबल, इन सब के बारे में अपने पास नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या है और ढंग से प्लेस्ड हुए या नहीं हुए. अगर सीवर लाइन्स और वाटर पाइपलाइंस ढंग से नहीं होंगे तो क्या बिल्डिंग को डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. अगर बिल्डिंग डैमेज होगी तो बिल्डिंग के गिरने के चांसेस बढ़ते हैं और उससे आदमी मर भी सकता है या फिर इंजर्ड हो सकता है हेवीली. तो ये चीजें सब कुछ ध्यान रखने की जरूरत है कि कहाँ बिछाई है, उसको ढंग से प्लेस किया नहीं किया, उसकी स्लोप ढंग से दी नहीं दी, इलेक्ट्रिक लाइंस को ढंग से मतलब एकदम से ओपन तो नहीं है, कोई वायर वायर कट तो नहीं गया, वो सब कुछ अपन को ध्यान रखने की जरूरत है.
All safety measures should be adopted to ensure the safety of the workers and the public. And the public. The work should be entrusted to an experienced and complete supervisor. He should be made responsible for the strict observation of safety precautions. The excavated branches should be given proper protection against slides and caving in during and after heavy rains and storms. एक चीज बताता हूँ, अगर बारिश और ये सब कुछ होती है तो वहां पर भी कीचड़ विचड़ हो जाएगा, तो उधर भी वाटर पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिक का इन सबका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं रखोगे तो स्लिपेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और बिल्डिंग अगर किसी का अगर अपन ध्यान नहीं रखा तो फिर इंजरी होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। वर्कर शुड बी आस्क्ड टू वियर हेलमेट्स वेयर देयर इज डेंजर ऑफ फॉलिंग स्टोन्स। अब देखो, कुछ भी चीज फॉलिंग स्टोन का मतलब ये नहीं कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, वो कुछ भी अगर मटेरियल गिरता है तो उसके ऊपर, सर के ऊपर ना लग जाए। अगर मेरी बात सुनो, ठेठ मतलब 10-15 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है और 15वीं मंजिल से एक छोटा सा कंकड़ भी गिरता है ना, तो वो एक बड़े पत्थर के समान होता है सर पे लगने वाला। ठीक है ना। इसलिए अगर हेलमेट पहना हुआ है तो वो अपन के हेड को हार्म नहीं करेगा। अगर गिर गया तो वो ठीक है, उससे टकरा के नीचे गिर जाएगा। इसलिए कंस्ट्रक्शन साइट पे हेलमेट का महत्व ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। अगर ऊपर से कुछ भी चीज छोटी मोटी गिर रही है ना, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। अगर ऊपर से कुछ भी हल्का सा पत्थर, कील वील कुछ भी गिर गई ना, तो उससे अपन बचाव कर सकते हैं। वेयर देर, ये वाला हो गया। कांस्टेंट वॉच एंड सुपरवाइजर शुड बी केप्ट on new workers while engaged on jobs involving risks or hazard. Proper selection of machinery and operations should be taken care. Explosives should be carefully used for blasting and ड्रिलिंग, ये भी ढंग से यूज करना जरूरी है। स्क्रैप फोल्डिंग, स्क्रैप फोल्डिंग क्या होती है? स्क्रैप फोल्डिंग क्या होती है, जल्दी बताओ। स्क्रैप फोल्डिंग क्या होती है, जल्दी बताओ। अरे स्क्रैप फोल्डिंग बताओ, बहुत कॉमन है बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर। सर वो फ्रेम लगते सर हैं वो वो। बढ़िया टाइप होती है ना। हाँ, बलिए बांधते हैं वो, जो बिल्डिंग के फ्रंट में कलर वलर करने के लिए, हाँ सर। प्लास्टरिंग के लिए हाँ आजकल वो ज्यादा यूज हाँ होती है। बढ़िया, हाँ हाँ वही। हाँ सर, हाँ, तो हाँ उससे बोलते हैं स्क्रैप फोल्डिंग। फ्रेम को सपोर्ट करना। Should be used depending upon the nature of the work and its situation. मिनिमाइज, अब इसके अंदर पॉइंट्स याद रखना। मिनिमाइज एंड मैक्सिमम मैनेज रिस्क, साइट सिक्योरिटी ध्यान रखने की जरूरत है। सेफ वर्क मेथड, ये सारे सेफ्टी मेजर से ध्यान रखना। सेफ वर्क मेथड असेसमेंट है। यूज क्लियर सिग्नेज थ्रू द साइट, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है। कंप्लेंट केमिकल कंप्लाइंट केमिकल स्टोरेज ढंग से रखना का। इन्वायरमेंटल कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए और फर्स्ट एड अवेलेबल होना चाहिए। लो, मैं एक रैंडम अटेंडेंस ले रहा हूं, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। अटेंटिव रहना सारे के सारे।
17 7 है। अभिषेक मेहरा, अभिषेक मेहरा, अभिषेक मेहरा प्रेजेंट है। आदित्य सुथार, प्रेजेंट सर। अंजलि व्यास, आदित्य तो प्रेजेंट हो। हाँ अंजलि व्यास, प्रेजेंट सर। अनुराग माथुर, प्रेजेंट सर। अशरफ अली, प्रेजेंट सर। चिराग सेन गुप्ता, प्रेजेंट सर। दीपेंद्र, प्रेजेंट सर। ध्रुव प्रताप सिंह भाटी, प्रेजेंट सर। डिम्पल राठौड़, प्रेजेंट सर। दिव्यांशु सर सिंह अभिषेक मेरा भाटी, प्रेजेंट। पानी पीने गया था सर। या किसी ने बता दिया? दिव्यांशु सिंह भाटी, प्रेजेंट सर। देवेश जोशी, प्रेजेंट सर। गर्वित परियार, प्रेजेंट सर। गौरव गौड़, यस सर। अरुण रशीद, यस सर। हर्षित चांडक, प्रेजेंट सर। राहुल देवड़ा, राहुल देवड़ा, प्रेजेंट सर। राहुल सिंह परमार, राहुल सिंह परमार, राहुल सिंह परमार, राजेंद्र कृष्ण सिंह चौधरी, प्रेजेंट सर। रक्षित दवे, प्रेजेंट सर। रवि कुमार जांगीड़, यस सर। सचिन प्रजापत, सचिन प्रजापत। ये रोज क्या ऑन करके चला जाता है क्या? सर मेरा नाम नहीं है, ऋतिक चौहान। अरे रुक जा, आएगा जब आ जाएगा, ऊपर नीचे हो जाती है मीट अटेंडेंस। अच्छा ठीक ठीक। शहजान, प्रेजेंट सर। शहजाद अली भाटी, शहजाद अली भाटी, यस सर। शहजाद प्रेजेंट है ना? हाँ ओके। हाँ सर। हाँ सोहेल खान, प्रेजेंट प्रेजेंट। तेजेंद्र सिंह चौहान, प्रेजेंट सर। वरुण शर्मा, प्रेजेंट सर। विजय लक्ष्मी, प्रेजेंट सर। विपुल वर्मा, विपुल वर्मा, विशाल रंकावत, हाँ यस सर। विशाल रंकावत, यस सर। लक्ष्मण सिंह, प्रेजेंट सर। मानव, प्रेजेंट सर। मनोज कुमार, यस सर। नकुल सेन, प्रेजेंट सर। नमन दादी, प्रेजेंट सर। निष्ठा भारद्वाज, प्रेजेंट सर। प्रदीप सांकला, यस सर। प्रवीण पूनिया, यस सर। जुनेद, प्रेजेंट सर। कुलदीप गहलोत, प्रेजेंट सर। ललित चौधरी, प्रेजेंट सर। होशियार सिंह दयाल, होशियार सिंह दयाल, जितेंद्र कुमार, प्रेजेंट सर। ओके प्रेजेंट सर। ठीक है। अब जिसके नाम नहीं आए वो मेरी लगा दी सर अटेंडेंस। मेन अटेंडेंस के अंदर दे देना, ठीक है ना? मेरी लगा दी सर अटेंडेंस। रक्षित दवे।
हाँ लगा दी। आगे मूव ऑन करते हैं। सेफ्टी लैकुना इन इंडियन सिनेरियो, क्या होता है ये? सेफ्टी लैकुना इन बिल्डिंग सिनेरियो, इन इंडियन सिनेरियो, सॉरी, क्या होता है जल्दी बताओ। लकुना का मतलब क्या होता है? सर उसका मतलब तो होता है वो जो गैप होता है ना बीच में। हाँ, जो बीच में गैप होगा वो होता है सेफ्टी मतलब लकुना का मतलब ये होता है जो बीच में गैप छोड़ा जाता है उसे बोलते हैं लकुना। आ गया समझ में? तो अब आगे अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर अपन को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा है वर्क नेग्लिजियंस, वर्कर्स नेग्लिजियंस। तीसरा है लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन। चौथा है इंजीनियर्स नेग्लिजियंस। आप देखो इसके अंदर पहली बात ही होता है क्या है, ये पढ़ते हैं। द इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज कंप्रोमाइज्ड ऑफ huge number of companies which falls into different brackets of enterprises. It is observed that the guide given by Indian government are usually only followed by the top companies, and its implementation is hardly observed in the lower firms. Even in the top tiers companies, the full implementation of such guidelines is not observed at all at their sites. Their implementation of guideline in the industry is not seen because of the following reasons. अब मेरी बात सुनो। इसका मतलब सेफ्टी मेजर्स ऑफ लकुना इन इंडियन सिनेरियो का मतलब ये है कि देखो, अगर तुम लोग खाली जगह नहीं छोड़ोगे किसी चीज के लिए तो वो क्या होगा, उसके लिए फिर आगे चल के अगर उसके कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स दिए गए हैं तो फिर वो प्रोटेक्टिव मेजर्स उसके अंदर काउंट नहीं होंगे। अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने बिल्डिंग प्लानिंग के अंदर पढ़ा होगा कि अगर अपन घर बनाते हैं तो 30% जमीन आगे से छोड़नी पड़ती है। रीजन बताओ। नेशनल बिल्डिंग कोड पढ़ा हुआ है ना बिल्डिंग प्लानिंग के अंदर? जल्दी से आंसर दो इसका। जल्दी से आंसर दो। सर अगर कभी रोड रोड बनती है उसके लिए स्पेस छोड़ते हैं। हाँ, आ गया समझ में? तो इसलिए अपन स्पेस छोड़ते हैं क्योंकि अगर गवर्नमेंट वो आगे वाली जमीन लेना चाहे तो तुम्हारे भी ज्यादा नुकसान ना हो। आ गया? पहला तो कॉस्ट का समझ में आ गया। कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन, अगर जगह छोड़ देते हैं तो यार वो क्या सोचेगा कि बिल्डर ये सोचेगा कि मेरे तो ऐसे ही फालतू की जमीन चली गई, अगर इधर कुछ और बना देता तो मेरा वो भी यूटिलाइजेशन हो जाता, इसलिए अपन ये वाली चीज आती है। अब देखो वर्कर नेग्लिजेंस क्या होता है। द वर्कर केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड आर नॉट well educated regarding safety. They don't understand the risk of their lives look of safety practices. Even after being educated about the risk, they don't tend to follow the practice. They find it hindrance to their work. Only after experiencing the facility of such conduct they understand its value, which sometimes can be too late.
तो जब तक ये चीजें समझता है मेरे ये सेफ्टी इसके अंदर सही है या नहीं है, जब तक वो चीज लेट हो जाती है। Lack of implementation of legislation. There are different laws set up by the government for the safety standard, but the implementation isn't monitored completely. Corruption at the different level of the implementation has made it easy for defaulters. मतलब अगर कहीं अपन को घर बनाना है तो वहां पर अपन ने रिश्वत देके काम चल जाता है, समझ में आया। देखो एक चीज बताता हूँ, नगर निगम वाले होते हैं छोटे छोटे, वो जो भी वर्कर्स होंगे तो वो यहाँ वहाँ स्कूटर लेके घूमते रहते हैं, तो जहाँ पर भी घर दिखता है उनसे एज इट इज रिश्वत लेते, ये नहीं रोकते कि ये घर क्यों बना रहे हो, गलत है या नहीं है। वो उनका 2-3 हज़ार रुपये में काम चलता है, तो उस घर वाला भी राजी कि मुझे परमिशन लेने की माता पड़ी नहीं, और उसका भी काम हो गया। तो इसलिए ये रिश्वत भी सबसे बड़ा हिंड्रेंस है, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। द वर्कर्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड मेथड्स हाउ टू फाइट फॉर द इंफ्रिजेंस ऑफ देयर राइट्स। और फिर है इंजीनियर्स नेग्लिजेंस, ये वाला इंजीनियर्स नेग्लिजेंस, इंजीनियर की तरह से लापरवाही होगी, वो चीज इसके अंदर आएगी। फिर है फायर सेफ्टी प्रोविजन एज पर एनबीसी। अब देखो एनबीसी गाइडलाइंस है फायर सेफ्टी प्रोटेक्शन, तो तुम लोगों को पता ही है कि अपन को फायर के प्रति कैसे कैसे सेफ्टी रखनी है। अब बस इसके एनबीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ लेना, ठीक है ना। फर्स्ट है कैटेगरी ऑफ द बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द कोड द बिल्डिंग, ये देख लेना, ये सारे के सारे 9 पॉइंट्स है जो ढंग से पढ़ लेना, ठीक है ना। According to the code, buildings are classified into 9 categories based on the characteristic of the occupancy and the need to put in the place the fire safety standard based on their category. While residence buildings are kept under Group A, industrial buildings are demarcated under Group G. Business building unit are kept under Group E. ये अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है, जैसे अपने अर्थक्वेक जोन डिवाइडेड होता है ना, तो वैसे के वैसे ये डिवाइडेड है। अपने इंडिया में अर्थक्वेक जोन्स कितने हैं? अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाते हो ना, तो अपन को ये भी जानना जरूरी है, कितने जोन्स हैं? 3 4। और पर अपन ले बोलते हैं 5। क्या फर्स्ट सेकंड एक ही तो होता है? फर्स्ट सेकंड नहीं, 5 तक जाते हैं भाई, कह रहा हूँ तुझे। तो फर्स्ट सेकंड एक होता है, जब भी तो मैंने बोला 4। पहला दूसरा एक ही है जो तूने बोला, तीसरा चौथा और 5 बोले सर्च मार ले। एंड स्टोरेज बिल्डिंग अंडर ग्रुप एच, रेजिडेंशियल बिल्डिंग आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 6 सब कैटेगरी। सेकंड है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में, द कोड डिफाइंस द रेजिडेंशियल बिल्डिंग एज कंस्ट्रक्शन इन विच स्लीपिंग एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर नॉर्मल रेजिडेंशियल पर्पस with or without cooking or dining or both facility except any building classified under group C. Group C building cover institutional buildings also। आ गया समझ में? फिर है danger to avoid, according to the code every building shall be construction equipped and maintained and operated as to avoid undue danger to the life and safety of the occupants from fire, smoke, fumes or panic during the time period necessary for escape। अब देखो, अब ये एक बार तुम लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में छोड़ो, अगर अपन ये वाली चीजें देखते जाए, अपन के खुद के पिक्चर हॉल्स मॉल्स के अंदर फायर सेफ्टी एग्जिट्स दिए हुए होते हैं, प्रोविजन सारा दिया हुआ होता है कि अगर आग लग जाए तो यहाँ से पीछे से भाग जाओ, तो सारे प्रोविजन दिए हुए होते हैं। पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर अपन के घर में अगर आग लग जाए तो अपन भाग भी नहीं पाएंगे, याद रखना। अपने यहाँ पर फायर सेफ्टी प्रोटेक्शन ही नहीं दिया हुआ होता आधे घरों में। सिटीज के घरों में जाके देख लो तो वहां पर फायर सेफ्टी प्रोटेक्शन के नाम पे 0 है, कुछ भी नहीं है। तो पुराने बने हुए हैं और एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, तो वहां पर कुछ टाइम पीरियड मिलेगा ही नहीं भागने का, तो वहां फिर वो उससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। फिर है रूल्स फॉर एग्जिट अंडर द कोड, while doorway, corridors, passageway are defined as exit, elevators are not kept in this category। elevators इसके अंदर काउंट नहीं होते, ये याद रखना। फायर के अंदर कभी भी एलिवेटर तो यूज ही नहीं करना चाहिए। अगर फायर के अंदर अगर एलिवेटर यूज किया गया तो ज्यादा डेंजरस है, ये याद रखना। The code says that no alternative should be made in the building to reduce the number, weight or protection of exits are required। फिर है mandatory fire safety drills।
as fire may cause a serious issue in the case of high risk unless a plan for orderly and systematic eva- evacuation is prepared. Fire drills should be conducted at least once in 3 months in high-rise building during the first 2 years of its construction, says the NBC. After that, such drills have to be conducted once in 6 months. तो ये पॉसिबल नहीं होता, पर ये एनबीसी कहता है कि हर 5-6 महीने के अंदर फायर ड्रिल्स के प्रोग्राम्स होने चाहिए. फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम इन द बिल्डिंग ऑफ लार्ज साइज वेयर, मतलब देख लो होटलों के अंदर ये मतलब ये वाली चीज होती नहीं होती. फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम होता है. फायर डिटेक्शन के ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं. अगर कुछ भी स्मोक जाती दिखेगी तो सेंसर्स के थ्रू पानी ऊपर से वो स्प्रे होने लग जाएगा, तो उससे आग दबाने के चांसेस बनते हैं. तो और अलार्म होता है कि बिल्डिंग में भागने के लिए जल्दी जल्दी मौका मिल जाए. इन बिल्डिंग ऑफ लार्ज साइज वेयर ऑफ फायर मे नॉट इटसेल्फ प्रोवाइड एडिक्वेट वार्निंग. Adequate warning. Adequate warning to the occupants. Automatic fire detection and alarm facilities are must. Installing of fire extinguisher. हर जगह मतलब जगह जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए. घर में कम से कम एक फायर एक्सटिंग्विशर तो होना ही चाहिए, और वो इतना रीचेबल होना चाहिए कि अपने पास आराम से जब भी वो चीज हो तो अपन स्प्रे करने के लिए हाथों हाथ उसको लिया, स्प्रे कर दिया. ठीक है ना. स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन ये वाला तो तुम लोग बताया था. वाटर स्प्रे होना चाहिए और वेट राइजर होना चाहिए. ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए. फिर है सेफ्टी मेजर्स फॉर डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग. डिमोलिशन मतलब समझ में आ गया. अगर बिल्डिंग को तोड़ना है तो भी सेफ्टी क्या क्या रखोगे. ये सारे एनबीसी के हिसाब से ही है तुम्हारे कोड्स के अंदर. तो नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से है, तो ये ध्यान रखना. अगर बिल्डिंग टूट रही है तो एकदम स्ट्रेट वर्टिकल टूटनी चाहिए. अगर बिल्डिंग अपन गिरा रहे हैं तो कोई आजू बाजू नहीं होना चाहिए उसके. वो सारे और जो भी होगा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहन के वो बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाएगा. ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए ही अपन को बिल्डिंग को डेमोलिश करना है, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन मतलब एकदम वेल मैनेज्ड होना चाहिए कि कैसे बिल्डिंग को गिराना है. पूरा एकदम प्लान होना चाहिए. प्रिकॉशन टू बी टेकन, मैंने कहा तो जो जो प्रिकॉशंस रखने अपन को सब कुछ रखने पड़ेंगे. फिर डिमोलिशंस ऑफ द वॉल, सबसे पहले दीवारें तोड़ो. ये वाला इसके अंदर ये वाला मैंने नहीं बताया, इसके अंदर ये ध्यान रखना. डेमोलिशन सबसे पहले क्या तोड़ोगे, वॉल्स को तोड़ो. फिर जाके कॉलम्स और बीम्स को डेमोलिश करो, क्योंकि कॉलम्स और बीम्स को डेमोलिश करना इजी है एज कंपेयर टू वॉल्स. वॉल्स यहाँ वहाँ गिर सकती है जब डेमोलिशन करोगे, तो ये ध्यान रखना. डेमोलिशन ऑफ द फ्लोर्स, वॉल्स करोगे तो फिर फ्लोर्स को भी करना पड़ेगा. फिर आज ये हो गया तुम्हारे यूनिट 2 कंप्लीटेड. इसके अंदर कुछ है डाउट? सर मिड टर्म 1 में यहाँ तक आएगा क्या? हाँ, मिड टर्म 1 में यहाँ तक ही दूंगा, इसके आगे नहीं दूंगा. फिर मिड टर्म 2 के लिए भी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 तो यूनिट है, चारों छोटे छोटे यूनिट है. तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ.